सुप्रभात आप सभी को। Thank you, worship team, और धन्यवाद है वर्शिप टीम का and our team as well. और हमारी टीम जो साउथ अफ्रीका से आई उनका भी। I want to say thank you to all of you for welcoming us again this morning. और धन्यवाद आप सभी का हम लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। I see many familiar faces from last week. और पिछली बार जब हम आए थे वो सब लोग हमें दिखाई दे रहे हैं आज। I'm looking forward to connecting again with you today. तो आज हम लोग फिर से प्रार्थना करेंगे। We are very happy to be back here from the prayer night last week. और हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे वापस आने के लिए। We were so encouraged by your church and was talking about it throughout the week. और हम लोग बहुत खुश थे आपके इस चर्च को और आपके इन लोगों को देखकर। To see a church that prays. और यहाँ के लोगों को देख के जो इतनी अच्छी प्रार्थना करते हैं। A group, as a team, we're reading through books right now. और हम एज अ ग्रुप यहाँ पे एक्ट्स पढ़ेंगे। And we're reminded that the early church was a church that prayed. और ये हमें याद दिलाता है उस चर्च का जो पुराने समय में प्रार्थना करते थे। And I'm excited to see how your church grows and expands and multiplies. और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस चर्च को बढ़ते हुए और फैलते हुए देखने के लिए। As you all are sowing in and dedicating time to prayer. जैसे कि यहाँ के लोग बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही अच्छे से प्रार्थना करते हैं। I'm gonna quickly introduce our team for those of you who don't know us. और जो लोग हमारी टीम को नहीं जानते हम उन्हें वापस एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे। We have most of our team here, and we're doing a school that came from South Africa. और हमारी कुछ टीम यहाँ पर हैं और हम लोग एक स्कूल कर रहे हैं जो साउथ अफ्रीका से आया हुआ है। And now we're here in India for the practical part of our outreach. और हम अभी यहाँ पे इंडिया में एक प्रैक्टिकल पार्ट के लिए प्रस्तुत हैं। So I'm Charity, and I'm from the US. ये चैरिटी हैं और ये यूएस से हैं। And if you want to just stand up when I call. We have Alicia from Madagascar. ये अलीसिया हैं और ये मेडागास्कर से हैं। Ruben from the Netherlands. इनका नाम रूबिन है और ये नेदरलैंड से हैं। Kezia from South Africa. ये केजिया हैं और ये साउथ अफ्रीका से हैं। Brian from East Africa. ये ब्रायन हैं और ये ईस्ट अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। And Bronwyn from South Africa. एंड ये ब्रॉडविन हैं। And I must say, my favorite, my husband. और ये इनके पति हैं। He's Jotham from Switzerland. ये जॉथम है और ये स्विट्जरलैंड से हैं। And our amazing friend Brian, our और- translator. और मेरा नाम ब्रायन है और मैं इनका ट्रांसलेटर हूँ। Yes. So I'll have Brian, the other Brian. और हम अब यहाँ पे ब्रायन को बुलाएंगे दूसरे वाले। Come on up, and I'll just pray for you. और अब हम प्रार्थना करेंगे इनके लिए। Oh, Brian's going to share a testimony this morning. ब्रायन यहाँ पर एक टेस्टिमोनी आज सुबह शेयर करने वाले हैं। And Bronwyn, after, was going to share the word with us today. और ब्रॉडविन इसके बाद वर्ड शेयर करेंगे हमारे साथ। So let's pray and open our hearts this morning to what God has to speak. तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और अपने दिलों को खोलते हैं। Okay. I'll just pray. Probably don't have to translate. Yeah, I'll just pray. God, we thank you for this morning. God, I pray for Brian that you would bring clarity to his words, that your spirit would move today, and that we would be sensitive to what you're doing. In Jesus' name, amen. Thank you, Charity, for that introduction. धन्यवाद चैरिटी हम सभी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। And praise the Lord. Praise the Lord again. Jai Mashiki. जय मसीह की। Yeah. So I'll introduce myself again. Apparently she missed something. तो मैं अपने आप को एक और बार इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। Okay. My name is Brian Muga. इनका नाम ब्रायन मूगा है।
Originally I'm from heaven, और ये स्वर्ग से बिलोंग करते हैं। and I was born in Kenya, which is in East Africa. और ये केन्या में पैदा हुए थे, जो कि साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में है। Yeah, so I've been introducing myself like this for a while, and I will find like people laughing because when I say I'm from heaven, they'll be laughing a lot. और मैं खुद को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों को हंसाना जब वो उनके चेहरों पे खुशी आती है। But to clear things up, I would like someone to read Philippians chapter 3, verse 20. Philippians 3 Verse 20. verse 20। Yeah. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता पर प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। As you can see, our citizenship is in heaven. We are citizens of heaven. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्वर्ग में बिलोंग करते हैं, सब लोग। It doesn't matter the race or nation ये मैटर नहीं करता कि हम किस जाति, किस धर्म के हैं, or the color of your skin. या हम कैसे दिखते हैं, हमारी त्वचा कैसी है। We are all God's children. और हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। Yeah, so I'm about to share a testimony that I have, and my testimony will be basing mostly on I'll be speaking about my fathers. और आज मैं यहाँ पे अपनी जीवन के एक टेस्टिमनी आपके लिए शेयर करने वाला हूँ जो कि मेरे पिता से बिलोंग करती है। I'll start by speaking about my earthly father. और मैं अपने पिता के बारे में आपको बताऊंगा। Then I'll speak about my heavenly father. एंड देन मैं अपने परमेश्वर के बारे में आपको बताऊंगा। So, like I said, I'm from Africa. और जैसा कि मैंने बताया, मैं अफ्रीका से हूँ। I'm born from a polygamous family. और मैं एक पॉलीगैमस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। So my father has so many wives. और मेरे पिता की काफ़ी बीवियाँ हैं। Yeah, and he too was also born in a polygamous family. और वो भी एक पॉलीगैमस फैमिली में पैदा हुए थे। But he didn't have a chance to have that relationship with his father. बट उनके पास ये मौका नहीं था कि वो अपने पिता से ऐसे कनेक्ट कर पाएं। Because my grandfather died when he was still young. क्योंकि इनके जो दादाजी थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी तब तक। But I was gracefully, it was loving. I'm gracefully, I had a connection, a relationship with my father. और मैं बहुत ही खुश और खुद को लकी मानता हूँ कि मैंने अपने पिता के साथ वो मोमेंट शेयर करे हैं और ऐसा कनेक्शन बना पाया है। But emotionally, I can say I can appreciate for his presence, but emotionally, like I say in a Christian way, a lot was missing. मैं बहुत ही खुश होता हूँ अपने पिता को अपने पास पाकर, पर ऐसा अगर देखा जाए क्रिश्चियन वे में तो फिर मुझे दुख होता है उन्हें देख के। I appreciate so much for the much that he did for us. और मैं खुश हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने मेरे लिए किया And the much that he's still doing for us. और वो चीज़ें जो मेरे लिए वो करते जा रहे हैं। Yeah, so my father is a very traditional African father. मेरे जो पिता हैं वो बहुत ही सीधे सिंपल विचार वाले एक इंसान हैं Who is more into rules जो कि बहुत रूल्स को फॉलो करते हैं and cultural laws और वहाँ की जो ट्रेडिशनल कल्चरल थिंग्स हैं उन्हें बिलीव करते हैं। and cultural beliefs also. यस, द कल्चरल बिलीव्स में भी वो बिलीव करते हैं। So it was also like a hard time growing up in such a family. और ऐसे परिवार में बहुत ही दिक्कत से मैं पला बड़ा हूँ Because growing up you had to suffer a lot. क्योंकि बहुत ही परेशानियाँ मुझे अपने जीवन में फेस करनी पड़ती थी। And my perspective about life changed. और जिस तरह से मैं अपने जीवन को देखता था वो बिल्कुल बदल गया। I used to view life as just a lot of suffering. We must suffer to live. और मुझे लगता था कि जीवन में ज़िंदगी जीने के लिए दुख को झेलना ज़रूरी है। Because from the relationship that I had also with my father, क्योंकि जो रिलेशनशिप मेरे पिता के साथ था, I had to seek affirmation. और मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी उनसे। And I had to do good things just to please him. और मुझे अच्छे कार्य करने पड़ते थे उन्हें खुशी पहुंचाने के लिए। I didn't have a voice to speak, you know. मेरे पास खुद की आवाज़ नहीं थी बोलने के लिए। Whenever I did speak, my opinion was not valued.
और ये जब भी अपने पिता से कुछ कहते थे इनकी बात को खारिज कर दिया जाता था And this led to a lot of emotional trauma and pain. और इन्हें अपने हृदय में बहुत ही दुख तकलीफ होती थी कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है And fear, और इन्हें डर भी लगता था and a lot of emotional trauma. और हृदय में इन्हें बहुत ठेस पहुंचती थी ये देख के So I thought to myself at once, so I thought to myself, और ये अपने खुद से जाते थे I believe family is everything for everyone. Family is everything for everyone. और जैसे कि परिवार सभी के लिए होता है But how much are you willing to give for your family? और जो मैटर करता है कि हम अपने परिवार के लिए कितना देना चाहते हैं Considering the type of family that I came from और जिस तरीके के परिवार से ये आए हैं and the pain that I underwent when I was in that kind of family, और जो इन्होंने महसूस करा उस परिवार में I lost my purpose in life. और इन्होंने अपना जो गोल था जो प्रॉमिस था वो जिंदगी का खो दिया Because I allowed a lot of fear and doubt to run my life. और इन्हें बहुत ही संदेह था खुद पे I really didn't even see my value and my worth anymore. और इन्हें इनकी वैल्यूज और जो हैप्पीनेस थी लाइफ की वो नहीं दिख रही थी Because growing up as a child, you need both parents. Both parents play a part in your journey growing up. और एक ज़िंदगी में जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसे दोनों माता पिता की बराबर ज़रूरत पड़ती है And one was missing. और एक की कमी थी इनके जीवन में Even though he was there, जबकि वो वहाँ प्रस्तुत थे you couldn't feel like he was there. बट वो उनके लिए अवेलेबल नहीं थे And every time we'll talk to him about this kind of situation, और जब कभी भी इन्होंने कोशिश करी अपने पिता से इस बारे में बात करने की you'll be told like, I am working hard और इन्हें बोल दिया जाता था कि मैं बहुत ही कठिन कार्य कर रहा हूँ to provide a good life for you guys, ताकि तुम एक अच्छा जीवन जी सको which I did appreciate. जिसकी मुझे बहुत ही खुशी है But what role are you playing in my life? पर आपका एक रोल क्या है मेरी जिंदगी में Is it just provision of fees and basic needs? क्या सिर्फ आपका कार्य एक पिता के समान क्या सिर्फ मेरे ज़िंदगी में एक फीस या फिर मेरे नॉर्मल लाइफ के खर्चे उठाना ही है Who will walk with me when I'm down? और कौन होगा मेरे साथ जब मैं दुखी रहूँगा Who will be my protector? कौन मुझे बचाएगा Who will be my supporter? कौन मुझे सपोर्ट करेगा The father's love is very important. जो पिता का प्रेम है एक इंसान की ज़िंदगी में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है So it was a very long phase of trauma and emotional pain. ये बहुत ही एक लंबा समय था जो कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया And it pretty much affected the way I related to people also. और इससे जिस तरीके से ये दूसरे लोगों से बात करते थे उस पर भी अफेक्ट पड़ा And the good thing is, और जो अच्छी बात है I had an opportunity to visit YWAM. और इन्हें एक मौका मिला व्यायाम को ज्वाइन करने का And it was just the perfect time. और यह एक परफेक्ट समय था इनकी ज़िंदगी का Because I was pretty much damaged emotionally. और ये बहुत ही बुरे समय से जा रहे थे अपनी ज़िंदगी के And all I was seeking for was peace. और इन्हें बस शांति चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में I didn't want to change anything that was in the past. और इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था जो कि अतीत में हो चुका था इनके साथ But I was in pursuit for peace. और इन्हें सिर्फ अब शांति चाहिए थी And release the emotional pain and traumas of my past experiences. और जो पुराने पेन ट्रॉमा और जो सफरिंग इन्होंने महसूस करी थी वो अब इन्हें नहीं चाहिए This is where I also met God in a relationship, in a personal point of view. यही एक समय था जब इन्होंने परमेश्वर को खोजा और उनके संग एक रिलेशन बनाया Because in my past I'm a born Catholic. और अतीत में ये कैथलिक थे And I was brought up in the ways of the Catholic Church. और ये एक कैथलिक चर्च में पले बड़े हैं और उसी तरीके से इनका जीवन गया है All the laws and rules and doctrines of the church I know. और जो लॉज और रूल्स होते हैं कैथलिक चर्च के वो ये मानते थे Because I also went to a missionary school. क्योंकि ये एक मिशनरी स्कूल में पढ़े थे Even still when I was in a missionary school. ये अभी भी कुछ समय तक मिशनरी स्कूल में थे I can tell you that still did not fix my emotional pain. और अभी भी इनके हृदय में जो दर्द था उसे ठीक नहीं करा गया था And there was still a part of me lacking a father's love.
और इनके हृदय में अभी भी पिता का प्रेम उमड़ रहा था। And as I can see, a lot of people out here are suffering a lot about. और जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दुख दर्द और तकलीफ है। God blesses us with different kind of fathers. और जो पिता हैं परमेश्वर, वो बहुत ही लोगों के पिताओं की कमी पूरी करते हैं। And as long as he's a father, और जब तक पिता हैं he's still a blessing to us. और हमारे पास तब तक ब्लेसिंग्स रहेंगी हमारे जीवन में। Whether he's a drunkard, भले ही वो एक ड्रंकर हो, whether he's abusive, भले ही वो लड़ाई झगड़ा करते हो, whether he's unavailable for us, भले ही वो प्रस्तुत ना हो हमारे जीवन में, he is still our father. वो फिर भी हमारे पिता हैं। You don't know how meaningful a father is to a child. और हम नहीं जानते कितने पिता हो सकते हैं एक बच्चे के। Yeah, so when I went to YWAM, और जब ये वायवाम गए, I had an opportunity, like I said, to have a personal relationship with God. और इन्हें एक मौका मिला परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप बनाने का। Because everything that I was seeking in my past life, और जो कुछ भी ये देख रहे थे अपने अतीत के जीवन में, the affirmation, affirmation, yeah, like being approved by okay, जो दुख था, the love, जो प्यार था, the care, जो केयर थी इनके पिता के, the support, जो सपोर्ट था इनके पिता के लिए, yeah, I found it in God in a personal level. और इन्हें ये सब परमेश्वर में मिला। This is something you'll never hear in the church. और ये चीज़ कभी हमें चर्च में सुनने को नहीं मिलती है। Because the church is more on the faith side. और जो चर्च है वो फेथ की साइड पे जाता है। And they'll speak little about the love side. और बहुत ही कम प्यार के बारे में बात करता है। And when you read 1 Corinthians 13:13, 1 Corinthians 13:13. 1 Corinthians 13:13। Yeah? The reading? Put away the mic. Corinthians 13:13. पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। Yeah. 3 things will abide forever: faith, hope, and love being the foundation. और 3 चीज़ें हमारे जीवन में हमेशा रहनी चाहिए: फेथ, लव एंड होप। And in our current world, और हमारे इस प्रस्तुत जीवन में with a lot of brokenness, और हर इंसान को मैं देखता हूँ वो टूटे हुए हैं। we see very little. We see that the presence of love is very little, or it's dying. और जो प्यार की भावना है हमारे दिल में वो बहुत ही कम पाई जाती है। Because we are pursuing for things that will satisfy our own needs. और क्योंकि ये मैं देख सकता हूँ कि इंसान जो है वो एक ऐसी चीज़ों के लिए भागता है जो उसकी खुद की ज़रूरतों को पूरा करता है। We no longer have a care for our neighbors. और हम भूल चुके हैं अपने पड़ोसी की दिल को समझना। Or living in harmony as we were living before. और हम भूल चुके हैं कि हम पहले कैसे रहते थे। Yeah. So, yeah, I'll tell you something about God's love. मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। And I would love to start it from the book of Genesis chapter 3. और मैं ये आपको जेनेसिस की बुक ऑफ चैप्टर 3 से बताऊंगा। Here you can see the man sinning against God. और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी पिता के अगेंस्ट में गाना गा रहा है। And even after man ate the fruit, और जो कि आदमी ने फल खाया था from the tree of good and evil. जो अच्छाई और बुराई का पेड़ था उससे। And when he had the presence of God, और जब उसे परमेश्वर की स्तुति मिली walking in the garden, चलते हुए एक गार्डन में, we know what he did first was he hid. और उसने सबसे पहले क्या करा, वो छुप गया। And maybe the reason why he hid, he knew like he did something wrong. क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि उसने पाप किया है। And he was in fear. और उसे डर था। But God was still merciful. पर परमेश्वर को फिर भी हृदय की भावना थी उसके लिए। Because from the whole story we can see that he had an option of destroying man and the world and creating a new man again. क्योंकि वो उनके पास एक ऑप्शन था उस आदमी को वापस मार के एक दूसरा बना लेने का। Because from what we understand is that God is powerful. क्योंकि परमेश्वर बहुत ही पावरफुल है। Because before we were created, क्योंकि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले he was still there. वो तब भी मौजूद थे।
but he was still merciful पर वो तब भी दयावान थे to the first man, सबसे पहले इंसान के लिए, Adam. एडम। And this has been like a generational disease for us all. और ये हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन में चला आ रहा है, Because we are living in sin, क्योंकि हम पाप के जीवन में जी रहे हैं। and sin sometimes is termed as like the body and the flesh. और पाप हमारे हृदय और हमारे मन और हमारे शरीर में इतना बस चुका है, And that is why you can see a lot of evil things around and happening around. तभी हमें इतनी सारी बुरी चीज़ें अपने जीवन में महसूस और देखने के लिए मिलती हैं। You can see a lot of drunkenness, हम देख सकते हैं कि कितने लोग दारू पीते हैं, a lot of addiction in drugs, बहुत सारे नशे आदि प्रकार के, a lot of hate, बहुत सारी नफरत, a lot of murders. लोगों में तमीज़ नहीं है। But there was a perfect plan for all of this. पर इन सब के लिए एक प्लान था। Yeah, because when you read the book of John 3:16, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है जॉन की 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। yeah, for God so loved the world that he sent his only begotten son, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता था कि उन्होंने अपना खुद का बेटा हमारे लिए सौंप दिया, to come and die for our sins. ताकि वो हमारे पापों के लिए यहाँ अपनी बलि दे सकें। This was at a time that you were very broken. और ये वह समय था जब वो बहुत ही टूटे हुए थे, At the time when God could have chosen to give up on the world. और परमेश्वर ये भी चूज कर सकते थे कि वो हम सबको अपने हाल पे छोड़ दें, But he did not still give up on us. पर उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ा नहीं हमें, But in our brokenness, और ना ही हमें ऐसे टूटे हुए जाने दिया। he sent his only son to come and save us, उन्होंने अपने बेटे को यहाँ भेजा ताकि हमें बचाया जा सके, so that we may find no condemnation. और ताकि जब हमारे पास कोई ना हो, हमारे पास परमेश्वर रहे। Yeah. And as we continue to verse 17, John 3:17. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। The two verses speak a lot about God's love. ये दोनों जो आयत हैं वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें बताती हैं, Because you can see God sending his only son क्योंकि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने एक लौते पुत्र को यहाँ भेज रहा है to save us from sin and condemnation, ताकि हमें पाप और बुराई से बचाया जा सके, and also bring eternal life. और ताकि हमें एक अनंत जीवन मिले। So even us as humans, we also have moments when we are very, very low in life. और जैसे हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में बहुत ही ऐसे दौर आते हैं जब हम अपने आप को अकेला और टूटा हुआ पाते हैं, And we feel like giving up. और हमें लगता है कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। Some might have suicidal thoughts. किसी को खुद की बलि देने का भी मन करता है। Some might take the route of drugs. कुछ लोग एक गलत रास्ते जैसे कि नशे के पार्थ पे चढ़ना चाहते हैं। Some might pursue educational like personality to be approved by the world. और कुछ किसी और का जीवन जीने की कोशिश करते हैं जबकि वो कुछ और होते हैं। Some might stick to doing good things. कुछ लोग अच्छाई के रास्ते पे भी चलने की कोशिश करते हैं, But everything, all this without God पर ये सब परमेश्वर के बिना is meaningless. व्यर्थ है। And as we continue on, और हम अब पढ़ेंगे another way you can see God's love एक और जरिया जिससे हम पिता का प्रेम देख सकें, is in the book of Romans. इस Romans chapter 8 verse 14 and 15. Chapter 8 verse 14 and 15. इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। Yeah, we are adopted in Christ. हम परमेश्वर में हैं Because we died to sin क्योंकि हम पाप के जीवन में मरेंगे, the very moment we accepted Christ in our life.
और जब हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में पालेंगे and we are born again with Him और हम तब एक और जीवन जिएंगे in His resurrection. और उनके स्वर्ग में। And that is why we call our God the Father, और इसीलिए हम अपने पिता को परमेश्वर कहते हैं, because we are His children. क्योंकि हम उनके बेटे हैं। And I can show you like how God is merciful और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पिता कितना दयावान है। in the book of Psalms. Psalms 103. Verse 8, from verse 8 to 12. Psalm 103. 103. verse from verse 8. 113. Psalm 13. 103. 1 or 3. Yeah, from verse 8. From verse 8. 103. $108, 103, Psalms 103 verse 8 to 12. में बावले हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं। 8 to 12. 8 to 12. Yeah. क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ, ये तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ। परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। Yeah, every time I read this verse, then I say, how lucky am I और जब भी मैं ये आयत पढ़ता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है to receive God's mercy after all I did. क्योंकि मुझे पिता की दया प्राप्त होती है उन सब कामों के बाद जो कि मैंने किए हैं And after all I've gone through. और उन सब चीज़ों के बाद जो कि मैंने महसूस करी अपने जीवन में। He has been so merciful to me. वो बहुत ही दयावान रहे हैं मेरे साथ। And I believe He has also been merciful to all of you. और मुझे लगता है कि वो आपसे भी दयावान रहेंगे। Yeah, because in the book of Romans 3:23 it says, for all have sinned क्योंकि रोमन की किताब में वो बोलते हैं इन सभी पापों के बाद and fallen short of God's glory. And fallen short of God's glory. और पिता की जो ग्लोरी है उसमें। But from this verse, और इस आयत में we can see that He has not punished us according to our sins. और हम देख सकते हैं कि पिता ने हमें पनिश नहीं करा है हमारे पापों के जरिए, But He has shown us His great mercy और उन्होंने हमें दया दिखाई है and removed our transgressions from us. और हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया। Isn't He a wonderful God? और हम देख सकते हैं कि वो कितने बेहतरीन परमेश्वर हैं। Amen. आमीन। So lastly, और आखिर में I would like to share Matthew 5 verse 43. और 5. Matthew 5 verse 43. Forty-three. तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। 43 to 48, please. Yeah. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्ग के पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। So this verse, इस आयत में whenever I read it, I feel convicted. और जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत ही खुशी होती है, Because it doesn't matter how much emotional trauma I've received from the very one person, क्योंकि ये मतलब नहीं पड़ता है कि जिस इंसान से मैंने इतना दुख झेला है I was supposed to show love dearly to, who is my father, और मुझे बताया जा रहा है कि मुझे उनसे उतना ही प्रेम करना चाहिए, and who showed little commitment, और जिन्होंने बहुत ही कम मेरे लिए अवेलेबल रहे हैं और कमिटमेंट करी है,
and to how my life will be. ताकि मेरा जीवन कैसा जा सके। So I also had an option to either hate or love. और मेरे पास एक जरिया था कि, उन्हें नफरत करने का या प्रेम करने का। And it became like a tough question in my head. और ये बहुत ही मुश्किल था चूज करना Like how hard is it to love your enemy? कि ये कितना मुश्किल है अपने शत्रु से प्रेम करना। Yeah, because as we can read through the verses, क्योंकि जैसा कि हम पढ़ सकते हैं it says like as Christians, और ये बोला जाता है कि जैसे हम क्रिश्चियंस हैं are you just meant to love your fellow Christians? और हमें बोला जाता है कि हमें हमारे फेलो क्रिश्चियंस जो कि हमारे कलीसिया के लोग हैं उनसे प्रेम करना चाहिए। And if it's so, और उसके बाद भी don't even those who are not Christians also love their fellow brothers? और जो क्रिश्चियन नहीं है वो भी अपने भाइयों को उतना ही प्रेम करते हैं। So what will make you stand out as a Christian? और तो फिर हम एज अ क्रिश्चियन कैसे अलग दिखें? If you claim to have the Spirit of God within you, अगर हम बोलते हैं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है why can't you also show His love? तो हम उनका प्रेम कैसे नहीं दिखा सकते? If He has forgiven your own sins, अगर हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है why can't you also show mercy to others? तो क्यों आप भी दूसरों को दया क्यों नहीं दिखाते? If He has delivered you from your hardest points in life, अगर आपको माफ कर दिया गया और बचाया गया आपके जीवन के कठिन समय से why can't you also be encouraging and comforting to other people? तो क्यों नहीं आप दूसरों को भी बचाते और माफ करते हैं उनकी गलतियों के लिए? What is making you different from the world? आपको कौन रोक रहा है और कौन अलग बना रहा है इस? Because the God that we are serving क्योंकि जो परमेश्वर को हम मानते हैं is a God for everyone. He's everyone's God, yeah. और वो हमेशा के लिए हमारे पिता हैं। Because when you see here from the verse, क्योंकि जैसा हम आयत में देख सकते हैं it says like the sun which is free, it rises for everyone, whether you're good or bad. तो जैसे एक बेटा है उसके अच्छे और बुरे में पिता हमेशा उनके साथ रहता है। He didn't say like these are my good people, so I will shine the sun to them, but these people I won't shine the sun to them. तो जैसे कि परमेश्वर ने अपने बेटे पर यीशु मसीह को सभी के लिए भेजा था ताकि उनके पाप माफ हो सकें। And when you continue through the verse, और आगे हम पढ़ सकते हैं आयत में he also says the rain. और ये बोला जाता है कि बारिश, The rain is for everyone, whether you are just or unjust. और जो बारिश है परमेश्वर की वो सभी के लिए, चाहे आप अच्छे हो या बुरे। So whether you are good or evil, भले ही आप अच्छे हो या बुरे इंसान हो, or whether your brother is good or evil, भले ही आपका भाई एक अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, we are still called to love them. और हम सब परमेश्वर के हैं। It doesn't matter how hard it is, और ये नहीं ज़रूरी है कि ये कितना मुश्किल है, but if you have the Spirit of Christ within us, और अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है it will teach us on how to love this person. तो वो हमें सिखाएगी हम अपने आप को और दूसरे इंसानों को प्रेम कैसे करें। Because the person you're also choosing to hate क्योंकि जिस इंसान को आप चूज कर रहे हैं हेट करने के लिए is also God's child. वो भी परमेश्वर का एक लौता बेटा है। And we can see the value of a person's life और हम जानते हैं कि एक इंसान का जीवन कितना अनमोल होता है through the parables, like the parable of the lost sheep. क्योंकि जैसा एक मेमना होता है जितना वो एक शेपर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होता है वैसे ही Leaving the 99 to find that one. जैसे कि एक शेपर्ड अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है। And we know how powerful love can be. और उसी से हम देख सकते हैं कि प्रेम कितना पावरफुल है। We can see how love brings peace और uसी से हमें शांति मिलती है and all good things that come with it. और प्रेम से ही सारी अच्छी चीजें आती हैं इस संसार में। Yeah, we can also see the power of love from the Bible in the book of 1 John. 1 John. Chapter 4. John 4 from verse 7 to 11. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ
कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इनमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। Yeah, this verse is so encouraging to us as Christians ये आयत बहुत ही अच्छी है हमें पढ़ने के लिए, because it's telling us to love one another क्योंकि ये हमें बताती और सिखाती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, and that love is of God. और प्रेम है जो वो पिता के जरिए आता है। And you cannot claim to love, you cannot claim to know God और हम लोग नहीं बोल सकते कि हम पिता को जानते हैं if you don't love, और अगर हम प्यार नहीं करते हैं, इसलिए because God is love. क्योंकि पिता ही प्रेम है। And when you continue to verse 10, Verse 10 it says like from His love और ऐसा बोलते हैं कि उनके प्रेम से He sent His Son to die for our sin. उन्होंने अपने बेटे को हमारे पापों के लिए भेजा था। And then verse 11 is a question, like if God sent His Son so much to die for our sins, और वर्स 11 में ये बोला गया है कि क्या पिता ने अपने बेटे को भेजा हमारे पापों के लिए मरने के लिए, why can't we also love one another? तो उसी जरिए हम एक दूसरे को भी प्रेम क्यों नहीं कर सकते हैं। Thank you so much for reminding me about the time. I'm aware. I know. बहुत ही धन्यवाद मुझे समय का बताने के लिए। I'm almost done. Yeah. Thank you so much for your time, and I'd like to invite the next speaker, Bronwyn, please. बहुत ही धन्यवाद आप सभी का, और हम ब्रॉडविन को आप बुलाना चाहेंगे।